بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ مرینا نے پوچھا، پھر کیا کرو گے؟ آسان سی ترکیب ہے، ہم بھی یہاں سے نکلیں گے تو وہ ہمارا تعاقب کریں گے، تم میرے ساتھ رہو گی اور سفورہ ڈی کروز کے ساتھ جائے گی۔ ہم مختلف راستوں پر جائیں گے تو وہ بھی 3 کی تعداد میں تقسیم ہو کر ہمارا تعاقب کریں گے، پھر میں اور سفورہ ان سے نمٹ لیں گے۔ انہوں نے اسی تدبیر پر عمل کیا، اپنے نیگرو ملازمین سے سامان اٹھوایا، پھر وہاں سے جانے لگے۔ جوڈی اور کیری نے انہیں جاتے دیکھا، پھر انہوں نے بھی اپنا اپنا سامان اٹھایا اور ان سے کافی فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے چلنے لگے۔ آگے جا کر مرینا کی ٹیم 2 حصوں میں تقسیم ہو کر 2 مختلف سمتوں میں جانے لگی۔ جوڈی نے کیری بال سے کہا، تم پال اور لوسی کے ساتھ ان کے پیچھے جاؤ، میں مس فلاور کے ساتھ ان کے پیچھے جا رہا ہوں۔ پال نے کہا، اس طرح ہم جنگل میں بھٹک جائیں گے۔ جوڈی نے جواب دیا، الپا ہم سب کے اندر رہ کر گائیڈ کرے گی اور ہم کسی ایک جگہ آ کر مل جائیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو تم لوگ واپس اسی گھاٹ میں آ جانا اور ہمارا انتظار کرنا۔ وہ بھی تقسیم ہو کر 2 مختلف سمتوں میں چلنے لگے۔ وہاں ایسے گھنے درخت اور جھاڑیاں تھیں کہ آسانی سے آنکھ مچولی کھیلی جا سکتی تھی۔ سفورہ اور عبداللہ جنگل کے کیڑے تھے، وہاں کی بھول بھلائیوں کو خوب جانتے تھے۔ سفورہ ڈی کروز کو اور عبداللہ مرینا کو لے کر ان بھول بھلائیوں میں گم ہو گئے۔ جوڈی وغیرہ کے پاس ٹارچ لائٹیں تھیں، وہ دور تک ٹارچ کی روشنی میں دیکھتے اور آگے بڑھنے لگے، کبھی دائیں کبھی بائیں سمت راستے بدل کر انہیں تلاش کرنے لگے۔ وہ شہری درندے تھے، جنگلی درندوں کا کھیل نہیں جانتے تھے۔ انہیں اندھیری رات میں سانپ نظر آئے، ایک شیر کے دھاڑنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ ان کے ساتھ آنے والی حسین عورتیں سہمی جا رہی تھیں۔ مس فلاور نے کہا، جوڈی ہم سے کہا گیا تھا کہ کوئی خطرہ پیش نہیں آئے گا، ہم ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر افریقہ کی سیر کریں گے۔ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، ذرا آنکھیں کھلی رکھو اور ان چھپنے والوں کو تلاش کرو۔ پلیز مجھے واپس بھیج دو۔ ہم پاگل نہیں ہیں، تمہیں اور لوسی کو خاص مقصد سے یہاں لائے ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ صاف صاف بتاؤ۔ ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ فارمولے کسی جنگلی قبیلے کی تحویل میں ہیں۔ یہاں کے سیاہ فام جنگلی سردار گوری اور چکنی عورتوں کو پسند کرتے ہیں۔ ہم تمہیں اور لوسی کو رشوت کے طور پر پیش کرنے کے لیے لائے ہیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں کسی کالے خوفناک نیگرو کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی اور تم مجھے پیش کرنا چاہتے ہو؟ میں اسرائیلی انٹیلیجنس کی جاسوسہ ہوں، کوئی بازاری مال نہیں ہوں۔ الپا نے اس کے دماغ میں آ کر کہا، فلاور اس جنگل میں چیخنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ انٹیلیجنس کے چیف نے رپورٹ دی تھی کہ تمہاری اور لوسی کی غفلت سے ایک غیر ملکی جاسوس اسرائیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ ہمارا ایک اہم راز چرا کر لے گیا۔ تم دونوں کو سخت سزائیں دی جانے والی تھیں، میں نے تمہیں ان سزاؤں سے بچا لیا تاکہ تم دونوں اس جنگل میں ہمارے کام آ سکو۔ وہ بولی، میڈم یہ ظلم ہے، ہمیں اپنے ہی ملک میں سزا پانے دو۔ نہیں، سزا یہی طے پائی ہے کہ تم دونوں کو ملک بدر کر کے ایک سیاہ فام حبشی سردار کے پاس عمر قید کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ یہاں تم دونوں کالے بچے پیدا کرتی رہو گی۔ میڈم ایسی ضلالت نہ کرو، کچھ تو غیرت کرو، ہم یہودی ہیں، ہمیں مار ڈالو مگر ہماری آبرو کا سودا یوں نہ کرو۔ الپا نے کہا، اس پہلو سے سوچو کہ تم اپنے وطن اور یہودی قوم کے لیے آبرو قربان کر رہی ہو۔ تمہاری قربانی سے یہودی قوم کو ایسے فارمولے ملیں گے جن کے ذریعے ہم پوری دنیا پر چھا جائیں گے۔ پھر وہ جوڈی سے بولی، کیا ہوا؟ کیا وہ چھپنے والے نظر نہیں آ رہے ہیں؟ اس وقت جوڈی کی ٹارچ کی روشنی دور کھڑی ہوئی سفورہ پر گئی۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولی، گولی نہ چلانا، وہ لوگ مجھے چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہیں۔ جوڈی نے کہا، یہ تم لوگوں کی کوئی چال ہوگی، تمہارے پاس کوئی ہتھیار ہو تو پھینک دو۔ میں بالکل نہتی ہوں، وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تم میرا ساتھ دو گے تو میں پاپگ مائس قبیلے تک تمہاری رہنمائی کروں گی۔ جوڈی ذرا چپ رہا، پھر الپا کی ہدایت کے مطابق بولا، تمہیں مطمئن کرنا ہوگا کہ وہ تمہیں کیوں چھوڑ گئے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے آہستہ آہستہ قریب آتے ہوئے بولی، وہ مجھے قبیلے کے سردار کی داشتہ بنانا چاہتے تھے، تمہارے پاس 2 گوری عورتیں دیکھ کر انہوں نے ارادہ بدل دیا ہے۔ وہ مجھے چھوڑ کر تمہاری عورتیں تم سے چھین کر لے جانے والے ہیں۔ وہ شہر سے گوری عورتیں لا سکتے تھے، پھر تمہیں کیوں لائے؟ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں پاپگ مائس قبیلے تک انہیں پہنچا سکتی ہوں۔ وہ مجھے مگادشو سے بیزابہ لائے، بیزابہ سے گھاٹ آنے کے راستے میں انہیں عبداللہ مل گیا، وہی عبداللہ جسے تم لوگ پاشا سمجھ رہے ہو۔ وہ اس جنگل کے اور پاپگ مائس کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے انہوں نے مجھ سے پیچھا چھڑا لیا ہے۔ اس نے پوچھا، پارس اور پاشا کہاں گئے ہیں؟
وہ بولی، اسی جنگل میں کہیں آس پاس چھپے ہوئے ہیں، تمہاری عورتوں کو حاصل کرنے کے بعد ہی دریا پار کریں گے۔ وہ ایک ہاتھ میں رائفل پکڑے قریب آیا، پھر اس کی تلاشی لینے لگا۔ قریب آنے پر اسے گرمی کا احساس ہوا۔ وہ کالی تھی مگر اس میں عجیب سی کشش تھی۔ جوڈی نہیں جانتا تھا کہ یہ زہریلی کشش ہے، اور اس کے بدن سے جو آنچ آ رہی ہے وہ زہر کی حرارت ہے۔ وہ تلاشی لینے کے لیے اس کے بدن کو ٹٹولتا ہوا جھکا تو صفورہ نے اس کی گردن میں باہیں ڈال دیں۔ وہ بولا، سیدھی کھڑی رہو اور مجھے تلاشی لینے دو۔ وہ بولی، تلاشی کیوں لیتے ہو؟ مجھے گولی مار دو، مگر ایک بار گلے سے لگا لو۔ اس نے گردن کے گرد باہوں کا گھیرا تنگ کر دیا۔ اچانک اسے یوں لگا جیسے وہ ملائم باہیں نہیں ہیں، رینگتے ہوئے دو سانپ ہیں جو گلے کا ہار بن گئے ہیں۔ چونکنے اور سنبھلنے میں دیر ہو گئی۔ جوڈی کے حلق سے چیخ نکلی۔ صفورہ نے اس کی گردن کے پاس دانت گاڑ دیے تھے۔ زہر ایسا تھا جیسے بجلی کا کرنٹ لگا ہو۔ ہاتھ سے رائفل چھوٹ گئی تھی۔ اس کی چیخیں جنگل میں دور تک گونجتی جا رہی تھیں۔ وہ زمین پر گر کر تڑپ رہا تھا۔ اس کے ساتھ آنے والی مس فلاور دہشت زدہ ہو کر پیچھے جا کر ایک درخت سے لگ گئی تھی اور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پھر چیخیں مر گئیں۔ چیخنے والا ٹھنڈا پڑ گیا۔ صفورہ نے اس کی ٹارچ اور رائفل اٹھا لی، پھر کہا، فلاور، مجھ سے نہ ڈرو، میں صرف دشمنوں کو نہیں چھوڑتی اور تم دشمن نہیں ہو۔ الپا نے پال اور کیری بال کے پاس آ کر کہا، بری خبر ہے، جوڈی مر چکا ہے۔ پال نے کہا، ابھی ہم نے چیخیں سنی تھیں، کیا وہ ہمارا جوڈی تھا؟ ہاں، ان کے ساتھ جو سیاہ فام لڑکی ہے وہ زہریلی ہے، اس نے جوڈی کو ڈس لیا ہے۔ تم تینوں کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ان میں سے کوئی بھی نظر آئے اسے فوراً گولی مار دو۔ اس کالی لڑکی کو اپنے قریب نہ آنے دو، صرف باربرا کو نقصان نہ پہنچانا، اسے زخمی کرنا، پھر میں اسے نمٹ لوں گی۔ وہ انہیں ہدایات دے کر برین ایڈم کے پاس آئی۔ اس نے پوچھا، کیا خبر ہے؟ افسوسناک خبر ہے، اس ٹیم کا لیڈر جوڈی مر چکا ہے۔ زہریلے پارس کی ٹیم میں ایک اور زہریلی لڑکی ہے۔ وہ صفورہ کے متعلق بتانے لگی کہ اس نے جوڈی کو کیسے ڈس لیا تھا۔ برین ایڈم نے پوچھا، کیا جوڈی اور اس کے ساتھی سے سامنا ہوتے ہی پارس اور پاشا کو زخمی نہیں کر سکتے تھے؟ ان کے ساتھ پارس اور پاشا نہیں ہیں، کہیں چھپے ہوئے ہیں، تو پھر باربرا کو گولی مار کر زخمی کر دو۔ باربرا بھی مشکوک ہے، وہ خود کو مریا کہتی ہے۔ اس کے بیان کے مطابق باربرا ان کے دماغ میں رہ کر انہیں گائیڈ کر رہی ہے۔ تم پال اور کیری سے کہو کسی بھی طرح مریا کو زخمی کریں، پھر اس کے چور خیالات پڑھ کر بہت کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وہ پال کے پاس آئی۔ جنگل میں ایک گولی چلنے کی آواز گونج رہی تھی۔ الپا نے پوچھا، یہ فائر کس نے کیا تھا؟ میڈم، کیری نے مجھ سے ذرا دور ہو کر گولی چلائی ہے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ہم کہاں ہیں۔ وہ ادھر آئیں گے تو ہمارا نشانہ بن جائیں گے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی کچھ فاصلے پر ٹارچ کی روشنیاں ادھر سے ادھر لہرانے لگیں۔ وہ دوسری پارٹی انہیں تلاش کر رہی تھی۔ پھر کوئی بھاری سی چیز ایک درخت کے پیچھے سے آ کر یوں گری جیسے کسی نے دوڑتے ہوئے درخت کے پیچھے سے چھلانگ لگائی ہو۔ کیری نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ درخت کی آڑ سے نکل کر چھلانگ لگانے والے پر گولی چلائی، مگر وہ محض فریب تھا۔ ڈی کروز نے ایک بڑے سے بیگ کو درخت کے پیچھے سے پھینکا تھا۔ جیسے ہی کیری نے آگے آ کر فائرنگ کی، عبداللہ نے دوسری طرف سے اسے گولی کا نشانہ بنا دیا۔ الپا نے اس کی چیخ سنی۔ پال کے دماغ سے نکل کر اس کے پاس گئی، پھر بھٹک کر واپس آ گئی۔ اس کا دماغ موت کے اندھیرے میں گم ہو چکا تھا۔ وہ بڑے بھائی برین ایڈم کے پاس یہ کہنے آئی کہ پال 2 عورتوں کے ساتھ رہ گیا ہے، وہ تنہا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس کے ادھر آتے ہی ادھر لوسی نے پال کے پیچھے آ کر شارٹ گن کی نال اس کی پشت سے لگا دی، پھر کہا، ذرا بھی حرکت نہ کرنا ورنہ گولی سے اڑا دوں گی۔ وہ پریشان ہو کر بولا، یہ کیا حماقت ہے؟ کیا تم دشمنوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہی ہو؟ نہیں، میں نے کل رات تمہیں جوڈی سے باتیں کرتے سن لیا تھا۔ تم لوگ مجھے اور فلاور کو اس جنگلی قبیلے کے سردار کی خدمت میں رشوت کے طور پر پیش کرنے والے ہو۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، جوڈی ایسا کہہ رہا تھا۔ میں تو تمہاری عزت کرتا ہوں، تم سے محبت۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر لوسی کو غافل سمجھ کر چھلانگ لگاتا ہوا قریبی درخت کے پیچھے جانا چاہتا تھا۔ جاتے جاتے اس نے پلٹ کر فائر کیا۔ اسی لمحے میں لوسی کی شارٹ گن سے بھی گولی چل گئی۔ پھر نتیجہ وہی ہوا جو ایک دوسرے پر فائر کرنے سے ہوتا ہے۔ اس کی گولی اسے اور اس کی گولی اسے لگی۔ ایک لڑکھڑاتی ہوئی کانٹے دار جھاڑیوں میں گری، دوسرا درخت سے ٹکرا کر ایک پتھر پر گرا، وہاں سے گھاس پر آیا، پھر نشیبی زمین پر سے لڑکتا ہوا دریا کے پانی میں جا کر ڈوب گیا۔ پھر جب دوسری بار ابھرا تو منہ زور لہریں اس کے بے جان جسم کو بہا کر لے جا رہی تھیں۔ ثانی نے خیال خوانی کے ذریعے علی سے رابطہ کیا۔ اس نے پوچھا، میری جان کیا بات ہے؟
मुझे जानना कहो, मैं गुस्से में हूँ। वो मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी यही है कि तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता। क्या पारस के पास गई थी? हाँ, ऐसी बकवास करता है कि सामने हो तो मुंह नोच लूं। आखिर वो क्या कह रहा था? तुम जानते हो वो आजकल बारबरा के साथ है और बारबरा खुद को लड़की नहीं समझती है। पारस कह रहा था आजकल वो नेक और शरीफ हो गया है, बारबरा के साथ सिराते मुस्तकीम पर चल रहा है। ये तो अच्छी बात है, कमबख्त को ऐसी ही लड़कियां मिलनी चाहिए। तुम आगे तो सुनो वो क्या कहता है। हाँ बोलो, क्या कहता है? उसका ख्याल है कि वो बारबरा की वजह से नेक और पारसा बन गया है और ये कहता है कि मैं भी उसी की तरह लड़की होकर भी लड़की नहीं हूँ, इसलिए तुम मजबूरन पारसा बने रहते हो। भाई उसे बोलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? वाह, फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? मैं एक मुकम्मल लड़की नहीं हूँ? यकीनन हो, उसके बकवास करने से नामुकम्मल तो नहीं हो जाओगी। मैं कुछ नहीं जानती, तुम उसे डांटते क्यों नहीं हो? वो केले का छिलका है, उस पर से सारी डांट फटकार फिसल जाती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे बेलगाम छोड़ दिया जाए। भाई उसके मुंह में लगाम डालने का काम बुजुर्गों का है और आज तक ये फैसला ना हो सका कि हम दोनों में से कौन बुजुर्ग है। पता चल जाए कि मैं बड़ा भाई हूं तो उसके कान पकड़कर पिटाई कर दूंगा। मैं कोई नन्ही सी बच्ची तो नहीं हूं कि तुम ऐसी फुसलाने वाली बातें कर रहे हो। और क्या करूं? अच्छा तुम ही बताओ, इस सिलसिले में क्या चाहती हो? मैं उस शरीर को मुंह तोड़ जवाब देना चाहती हूँ। अच्छी बात है, हम उसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे जिसके नतीजे में वो तिलमिलाता रहे और हमारे खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई ना कर सके। हाँ मैं यही चाहती हूँ। बोलो, उसे किस तरह तिगनी का नाच नचाना चाहिए? ज़रा सब्र करो, उसे वो फॉर्मूले लेकर वापस आने दो। चलो ठीक है, तब तक मैं कोई ऐसी तदबीर करूँगी कि वो मेरे सामने नाच नाच कर तौबा करता रहेगा। अच्छा अब अपनी घड़ी देखो, 5 बजने वाले हैं, मिलिट्री एयरपोर्ट चली जाओ। हाँ डैडी आने वाले हैं, उन्होंने कहा था कि जो भी आ रही है, मैं अभी आती हूँ। उसने राबता ख़त्म किया, फिर लिबास बदलकर फौजी जीप में बैठकर मिलिट्री एयरपोर्ट की तरफ जाने लगी। सलमान और सुल्ताना बाबा साहब के इदारे से आ रहे थे। जो ने पिछली रात सलमान से कह दिया था कि वो भी अपने मातहत ताहिर शामी के साथ पेरिस जाएगी। वो मेरी बहू थी, उसे हर तरह की आज़ादी थी। वो इदारे से बाहर किसी वक्त भी जा सकती थी और किसी वक्त भी आ सकती थी, उसे कोई रोकता टोकता नहीं था। इस वक्त ये आज़ादी हमारी लाइल्मी में महंगी पड़ रही थी। वो अल्पा की मामूला और ताबेदार बनकर उसके अहकामात के मुताबिक ब्लैक एडम के साथ पेरिस पहुंच रही थी। इससे पहले अल्पा ने सुपरमास्टर के टेलीपैथी जानने वाले टेरी हार्ट को पेरिस के एक सिनागॉग में रबी दाऊद के पास पहुंचा दिया था। बड़े भाई ब्रेन एडम ने टेरी हार्ट को वहां शाम तक छोड़ना मुनासिब नहीं जाना। उसने एक खुसूसी तैयारे का इंतज़ाम किया, फिर टेरी को अपने पास तिल अबीब बुला लिया। अब उसे जोजो का इंतज़ार था। चूंकि जोजो को फ्रांस की पुलिस और आर्मी के तमाम अफसरान जानते थे, इसलिए उसे फ़ौरन पेरिस से बुलाया नहीं जा सकता था। ये तय पाया कि वो पहले सिनागॉग जाएगी। वहाँ रबी दाऊद उसका मेकअप और गेटअप तब्दील कराने के इंतज़ामात कर चुका था ताकि खुसूसी तैयारे में जाते वक्त उसे कोई पहचान ना पाए। बाबा साहब के इदारे से रवाना होते वक्त किसी ने जोजो और ताहिर शामी पर किसी किस्म का शुबा नहीं किया था। अल्पा मुतमईन थी, लेकिन हेलीकॉप्टर जब पेरिस पहुंचा तो मिलिट्री एयरपोर्ट पर सानी और अली को देखकर परेशान हो गई। सानी अपने बाप सलमान और माँ सुल्ताना से गले मिलने के बाद जोजो के पास आई। उससे मुसाफहा करते हुए बोली, हाय जोजो, बहुत अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। कहो पेरिस कैसे आना हुआ? बस यूं ही ज़रा तफरीह के लिए आई हूँ। ये मिस्टर ताहिर शामी हैं, तुम और अली शायद नहीं जानते। ये 4 बरस तक तिलबीब में हमारे जासूस बनकर रहे। अली ने वहाँ फिंगरप्रिंट्स वाली गलती की तो ताहिर शामी के लिए खतरात पैदा हो गए। इनके फिंगरप्रिंट्स की भी चेकिंग होने वाली थी, ये इससे पहले ही यहाँ चले आए। अली ने कहा, तुम गलत कह रही हो, मैंने गलती नहीं की थी। मरीना ने उन यहूदियों को उंगलियों के निशानात के सिलसिले में भड़काया था और तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि मैं मिस्टर ताहिर शामी से तिलबीब में मिल चुका हूँ। उसने ब्लैक एडम से मुसाफहे के लिए हाथ बढ़ाते हुए पूछा, क्यों मिस्टर शामी? वो मुसाफहा करते हुए बोला, जी हाँ, आज पेरिस में आपसे दोबारा मिलकर खुशी हो रही है। अली बोला, दोबारा नहीं 44 कहो। तिलबीब में 3 बार हमारी मुलाकात हुई, आज ये 4थी बार हो रही है। क्या तुम्हारी यादाश्त कमज़ोर हो गई है? यादाश्त कमज़ोर नहीं है, हाँ हिसाब में कमज़ोर हूँ। अल्पा ने जोजो के अंदर चुपके से कहा, ताहिर शामी को यहाँ से आगे बढ़ाओ, अली इसका मुहासबा कर रहा है। ताहिर शामी से कोई गलती हो जाएगी, फ़ौरन यहाँ से निकलो। जोजो ने कहा, अली तिलबीब की बातें जाने दो, मैं यहाँ सिर्फ तफरीक की गर्ज से आई हूँ। ठीक है, गेट पर इदारे की गाड़ी है,
तुम अंकल सलमान के साथ चली जाओ। जोजो ने घूर कर पूछा, तुम मुझे अंकल के साथ जाने को क्यों कह रहे हो? क्या तुम मेरे सरपरस्त हो? सानी ने कहा, प्लीज़ जोजो, बुरा ना मानो, ये पापा का हुक्म है कि मौजूदा हालात में हम सबको मोहतात रहना और एक दूसरे की हिफाजत करनी चाहिए। सानी, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पापा ने दर्जनों बार देखा है कि मैं अपनी हिफाजत आप कर सकती हूँ। फिर मेरा बॉडीगार्ड ताहिर शामी मेरे साथ है। तुम दोनों का शुक्रिया, मेरी फिक्र ना करो। उसने ताहिर शामी को हुक्म दिया, कम ऑन शामी। फिर पलट कर जाने लगी। ब्लैक एडम उसके पीछे जाने लगा। सलमान ने सानी और अली से कहा, इसकी बात का बुरा ना मानो, मैं इस पर नज़र रखूँगा। वो सब फौजी गाड़ी में बैठ गए। अली ने कहा, अंकल, टेलीपैथी के ज़रिए फ़ौरन सिक्योरिटी ऑफिसर से कहें कि जोजो को गेट से बाहर जाने की इजाज़त देने में ज़रा ताख़ीर करे और आपसे राबते के बाद फिर वो अफसर किसी को अपने दिमाग में आने ना दे। सानी ने कहा, मैं सिक्योरिटी ऑफिसर से राबता कर रही हूँ। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। अली ने ड्राइवर से कहा, मेजर का बंगला यहाँ से करीब है, फ़ौरन वहाँ चलो। वो उस बंगले में आए। वहाँ मेजर से इजाज़त लेकर अली स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। सानी उसके बराबर आ गई। वो सलमान और सुल्ताना से रुखसत होकर उस गेट की तरफ आए। कार के शीशे कलर्ड थे। गेट पर रुके हुए जोजो और ब्लैक एडम उन्हें ना देख सके। सानी ने गेट पार करते हुए सिक्योरिटी ऑफिसर को दिमाग में आने का सिग्नल दिया। फिर बोली, जोजो को जाने दो। अफसर ने जोजो से कहा, मैडम, हम मानते हैं कि आपको इदारे के अंदर जाने और बाहर आने से कोई नहीं रोकता है, लेकिन ये आर्मी का हेडक्वार्टर है। बाहर जाने के लिए गेट पास ज़रूरी है। चूँकि मैं आपको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, इसीलिए गेट पास के बगैर जाने की इजाज़त दे रहा हूँ। आप जा सकती हैं। उसके लिए गेट खोल दिया गया। ब्लैक एडम इदारे की कार में स्टीयरिंग सीट पर आ गया। जोजो उसके बराबर बैठ गई। फिर वो गाड़ी आगे बढ़ गई। अल्पा ने कहा, जोजो, दाएं बाएं और पीछे देखती रहो। तुमने अली से सख्त लहजे में गुफ्तगू की है, वो किसी तरह का शुबा कर सकता है। जोजो मोहतात नज़रों से देखने लगी। उसे मेजर की वो कार नज़र आ रही थी जो उनसे पहले गेट से गुजर गई थी, लेकिन जल्द ही ट्रैफिक के हुजूम में वो गाड़ी गुम हो गई। इसके बाद वो नज़र नहीं आई। अल्पा ने कहा, शुक्र है हमारा शुबा गलत था, कोई ताकुब नहीं कर रहा है। अली ने ट्रैफिक के हुजूम में पहुंचते ही कार एक तरफ रोक दी थी। फिर सानी के साथ एक टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को $200 देते हुए कहा, आगे जाने वाली सुर्ख रंग की स्पोर्ट्स कार जिसका नंबर PS11052 है, बहुत ज़्यादा फासला रखकर उसका पीछा करो। टैक्सी सुर्ख रंग की कार के ताकुब में चल पड़ी। अली नादान नहीं था। वो समझ रहा था कि जोजो के साथ कोई गड़बड़ हो रही है तो गड़बड़ करने वाले ताकुब करने वालों पर नज़र रखेंगे। उसने सानी से कान में कहा, सिग्नल पर गाड़ियां रुकें तो किसी करीबी कार वाले को ट्रैप करो। उसने यही किया। एक सिग्नल पर बेशुमार गाड़ियां आगे पीछे दाएं बाएं खड़ी हो गईं। सानी ने एक कार वाले से पूछा, हेलो, मुझे लिफ्ट मिल सकती है? कार वाला मन चला था। उसने कहा, अकेली होती तो ज़रूर लिफ्ट देता। सानी ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। अली के साथ आकर कार की पिछली सीट पर बैठ गई। अली ने टैक्सी ड्राइवर से कहा, अब हमारे पीछे ना आना, $200 में ऐश करो। सिग्नल मिलते ही फिर गाड़ियां आगे बढ़ गईं। सानी ने कार वाले के दिमाग पर कब्जा जमाया हुआ था। वो उसकी मर्जी के मुताबिक ड्राइव कर रहा था। झील के किनारे पारस, अली, सानी और जोजो के लिए अलग अलग कॉटेजेस मखसूस थे। जोजो को अपने कॉटेज की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन उसकी कार दूसरे रास्तों पर जा रही थी। फिर वो कार एक बहुत बड़े सिनागॉग के बड़े से अहाते के अंदर चली गई। सानी ने उससे कुछ फासले पर कार रुकवा दी। उतरकर कार वाले से बोली, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ लिफ्ट दी, शुक्रिया। वो हैरानी और परेशानी से बोला, मैं इधर कैसे चला आया? ये तुम्हारी लिफ्ट देने की बुरी आदत का नतीजा है। सोचते रहो, बाय बाय। सानी ने ख्याल ख्वानी के जरिए से वापस जाने पर मजबूर किया। फिर वो दोनों सिनागोग के करीब आकर एक दीवार की आड़ से देखने लगे। जोजो की कार सिनागोग के बड़े से दरवाजे के सामने खड़ी हुई थी। एक शख्स उस कार में आकर बैठ गया। फिर उसे ड्राइव करते हुए सिनागोग के अहाते से बाहर दूर कहीं ले जाने लगा। उस कार में जोजो और ब्लैक एडम नहीं थे। सानी ने कहा, ये कार इदारे से जोजो के लिए भेजी गई थी, इसलिए इसे यहाँ से दूर कहीं पहुँचाया जा रहा है ताकि यहूदियों के इस अड्डे पर किसी को शुबा ना हो। अली ने कहा, मैं पिछले हिस्से की तरफ जा रहा हूँ, जिधर से आसानी होगी उधर से अंदर जाऊँगा। तुम मेरे दिमाग में रहोगी, मैं रास्ता साफ करता जाऊँगा, तुम मेरे पीछे आती रहना। वो पलट कर एक तरफ चला गया। सिनागॉग के बड़े हॉल में रब्बी दाऊद ने बड़ी गर्मजोशी से जोजो का इस्तकबाल किया। उसके सर पर हाथ रखकर मुख्तसर सी दुआ दी। फिर कहा, आओ मेरी बच्ची,
किस्मत तुम पर मेहरबान हो रही है, तुम्हारे लिए नई जिंदगी के दरवाजे खुल रहे हैं। वो उसका हाथ थामकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक दरवाजे पर आया, फिर उसे खुलवाया। दूसरी तरफ एक कॉरिडोर था, उसके अतराफ कई कमरे थे। रबी दाऊद ने एक कमरे का दरवाज़ा खोला, फिर जोजो के साथ कमरे में आया। ब्लैक एडम उनके पीछे चल रहा था। वो तीनों उस कमरे के स्टोर रूम में आए। स्टोर रूम के दूसरी तरफ एक और दरवाज़ा था। उसे खोलने से जोजो को पता चला कि सीढ़ियाँ नीचे की तरफ गई हैं। यकीनन वहाँ तहखाना था। वो पलट कर बोली, शामी, हम कहाँ जा रहे हैं? अल्पा ने उसकी सोच में कहा, मुझे कोई सवाल नहीं करना चाहिए। शामी मेरा मुहाफिज है, मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। वो रबी के पीछे सीढ़ियाँ उतरती हुई तहखाने में आ गई। वहाँ एक बूढ़ा मेकअप मैन और 2 औरतें थीं। ब्लैक एडम ने कहा, जोजो, बाहर हमारे लिए ख़तरा है, यहाँ कुर्सी पर बैठ जाओ। तुम्हारे चेहरे पर आर्जी मेकअप किया जाएगा। मैं भी अपनी सूरत बदल रहा हूँ, फिर दुश्मन हमें नहीं पहचान सकेंगे। जोजो ने देखा ताहिर शामी दूसरी कुर्सी पर बैठ गया था और ख़ुद को आईने में देखकर अपनी मूछें और सर से विग उतार रहा था। 6 अदद एडम ब्रदर्स में से चौथे ब्रदर का नाम रॉकेट एडम था। वो कमाल का साइंसदान था। उसने प्लास्टिक और इंसानी खाल के रेशों से ऐसा मास्क बनाकर ब्लैक एडम के चेहरे पर चढ़ाया था कि एंटी मेकअप कैमरे भी उस मास्क के पीछे असली चेहरे को नहीं दिखा सकते थे। ब्लैक एडम ने ताहिर शामी के उस मास्क को चेहरे पर से उतारा तो जोजो ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ। मेरे और तुम्हारे और भी भाई हैं। हम भाइयों ने कसम खाई है कि दुनिया की हर जवान लड़की को अपनी बहन बनाएंगे। इससे तुम्हारी नेकी और शराफत जाहिर होती है, लेकिन तुम लोगों ने ऐसी कसम क्यों खाई है? औरत को बहन बना लेने से मर्द त्रिया चलित्र यानी औरतों की मक्कारियों से और उनके हुस्न शबाब की ख्वाहिश करने से बाज रहता है। इस तरह औरतों के जरिए पैदा होने वाली तमाम तर बदमाशियों और मुसीबतों से आप ही आप बचता चला जाता है। तुम लोगों के सोचने का अंदाज कुछ अजीब सा है, मगर जो कुछ कह रहे हो उससे दानाई झलक रही है। क्या वाकई सभी को बहन कहते रहोगे? किसी एक से भी शादी नहीं करोगे? हम कभी शादी और इज़्दवाजी ज़िंदगी के मुतालिक सोचते ही नहीं हैं। फ़र्ज़ करो कभी शादी का जज्बा पैदा हुआ तो शादी करने वाले को दूसरे भाई गोली मार देंगे। अल्पा ने आकर कहा, ब्रदर, मैं बड़े भाई के पास गई थी। उसकी हिदायत है कि तुम फ़ौरन यहाँ से निकलो। सोमालिया में तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। क्या जोजो को छोड़ दूँ? जोजो अब ख़तरे से बाहर है। मैं उसकी निगरानी कर रही हूँ। तहखाने में कोई नहीं आ सकेगा। बड़े भाई ने जो टीम सोमालिया भेजी है उसमें तुम्हारे जैसा शाहजोर और सोच समझकर चालें चलने वाला कोई नहीं। तुम्हें आज रात तक वहां पहुंच जाना चाहिए। सिनागॉग के बाहर एक गाड़ी तैयार है, फौरन रवाना हो जाओ। वो उठ गया। जोजो के सर पर हाथ रख कर बोला, सिस्टर, एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, बहुत जल्द तुम्हारे पास फिर आऊँगा। वो तहखाने से जाने लगा। सानी सिनागॉग के बाहर उसी दीवार की आड़ में थी। उसने ख्याल ख्वानी के ज़रिए अली से कहा, अभी सिनागॉग के अहाते में एक गाड़ी आकर रुकी है। गाड़ी चलाने वाला स्टीयरिंग सीट पर यूं बैठा है जैसे किसी का इंतज़ार हो। इस गाड़ी में जोजो आकर बैठ सकती है। तुम कहाँ हो? मैं सिनागॉग के बड़े हॉल में पहुंच गया हूँ। रास्ता रोकने वाले 2 गार्ड्स को बेहोश कर चुका हूँ। ख्याल था कि अंदर खासी रुकावटें होंगी, लेकिन हॉल बिल्कुल खाली है, कोई नज़र नहीं आ रहा है। उसी वक्त एक दरवाज़ा खुला। वहाँ से ब्लैक एडम नमूदार हुआ। वो दरवाज़ा बंद करने के बाद हॉल से गुजरता हुआ बाहर जा रहा था। अली उसे छुप कर देख रहा था, लेकिन पहचान नहीं रहा था, क्योंकि अब वो ताहिर शामी नहीं था। सानी ने कहा, ये हॉल से गुजरने वाला अजनबी शायद इस गाड़ी में जाएगा। ये कौन हो सकता है? अली ने कहा, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि यह अजनबी खतरनाक है और कुछ शनासा है। ब्लैक एडम हॉल से बाहर जा चुका था। सानी ने कहा, वो गाड़ी में बैठकर जा रहा है, उसे गोली मारो, जोजो की फिक्र करो। गाड़ी अहाते के अंदर से चलती हुई गेट की तरफ आई, फिर जाने लगी। उसी वक्त अली ने चौंक कर कहा, सानी, याद आ गया, मुझे अजनबी के चलने का अंदाज शुबे में मुब्तला कर रहा था। ताहिर शामी एयरपोर्ट पर जोजो के साथ जा रहा था। इसकी चाल बिल्कुल ऐसी ही थी। सानी ने कहा, अब ऐसी हो या वैसी, गाड़ी दूर जाकर नज़रों से ओझल हो चुकी है। हम उसके पीछे नहीं जा सकेंगे। मैं अंदर आ रही हूँ। वो अहाते में आई, फिर दौड़ती हुई हॉल के अंदर पहुँच गई। उससे बोली, जिस दरवाजे से वो अजनबी निकला था उधर चलो। अली उसके साथ उसी दरवाजे पर आया। उसे खोलकर दोनों कॉरिडोर में आए। कॉरिडोर के दोनों तरफ कई कमरे थे, सबके दरवाजे बंद थे। अली ने कहा, एक एक दरवाज़ा खोलकर देखना होगा। किसी दरवाजे को खोलने की ज़रूरत पेश नहीं आई। रबी दाऊद की शामत आई थी।
उसने सोचा तहखाने में जोजो का मेकअप हो रहा है, उधर कोई नहीं आएगा, मुझे बाहर दूसरे मजहबी फ़राइज़ भी अदा करने हैं। ये सोचकर वो तहखाने से बाहर स्टोर रूम में आया। वहाँ से निकलकर कमरे में पहुँचा। फिर कमरे का दरवाज़ा खोलते ही सानी और अली कॉरिडोर में नजर आए। वो ज़रा सा घबराया, फिर संभल कर बोला, मेरे बच्चों, तुम कौन हो? यहाँ क्यों भटक रहे हो? सानी ने उसके लहजे को गिरफ्त में लेकर दिमाग में पहुँचना चाहा। उसने सांस रोक ली। वो बोली, अली, ये मेरा रास्ता रोक रहा है। वो भागना चाहता था। अली ने उसकी गर्दन दबोच ली। गर्दन जैसे आहनी शिकंजे में जकड़ गई थी। वो सांस ना रोक सका। सानी ने उसके चोर ख्यालात पढ़कर कहा, इस कमरे के स्टोर रूम से एक सीढ़ी तहखाने में जाती है। उस तहखाने में जोजो का मेकअप हो रहा है। वहाँ एक मेकअप मैन और 2 औरतें हैं। मेकअप मैन के मेकअप बॉक्स में एक रिवॉल्वर रखा हुआ है और एक रिवॉल्वर इस रबी के लिबादे में है। ये उसे निकालना चाहता था, मैं इसे रोक रही हूँ। अली ने उसके लिबादे के अंदर से रिवॉल्वर निकाल लिया। फिर बोला, सलामती चाहते हो तो बिल्कुल खामोशी से चलो। वैसे मैं भूल गया था, तुम तो अपने इख्तियार में नहीं हो। वो उसे लेकर तहखाने की तरफ जाने लगा। अब कोई रुकावट नहीं थी। वहाँ का सबसे बड़ा शाहजोर ब्लैक एडम, जो गर्दन तोड़ पहलवान था, उससे टकराव ना हो सका। ये भी मुकद्दर का खेल है। वो खतरनाक शख्स सोमालिया के जंगल में पारस से टकराने गया था। इधर अली और सानी के लिए मैदान साफ था, लेकिन जो सोचो वो होता नहीं है। मंजिल आसान नजर आती है, लेकिन वहां तक पहुंचना नामुमकिन सा हो जाता है। अली ने अपनी दानिस्त में होशियारी दिखाई। तहखाने में पहुंचते ही ललकार कर कहा, खबरदार, अपनी जगह से कोई हरकत ना करे वरना जान से जाएगा। दोनों औरतों ने अपने हाथ उठा लिए, लेकिन मेकअप मैन तेजी से बॉक्स की तरफ पलटा। खुले हुए बॉक्स में रिवॉल्वर रखा हुआ था। उसे उठाने में भी उसने फुर्ती दिखाई, लेकिन अली ने उसे वापस पलटने से पहले ही गोली मार दी। वो चीख मारकर फर्श पर गिरा। रिवॉल्वर हाथ से छूटकर जोजो के कदमों में आ गया। जोजो ने उसे उठाकर अली को निशाने पर रखते हुए कहा, वापस जाओ, सानी को यहाँ से ले जाओ वरना। सानी बात काट कर बोली, जोजो, हम समझ रहे हैं, तुम्हारे दिमाग पर अल्पा ने कब्जा जमाया हुआ है। हम अल्पा को समझाते हैं, वो जोजो को यहाँ से अगवा करने की हमाकत ना करे। अली ने कहा, ये पारस की जान और पापा की लाडली है, इसे कुछ हुआ तो तमाम इसराइली अकाबरीन कुत्तों की मौत मरने लगेंगे। दुनिया की कोई इंसानी ताकत उन्हें नहीं बचा सकेगी। जोजो ने कहा, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम लोग किस अल्पा की बातें कर रहे हो? मैं आखिरी बार पूछती हूँ, यहाँ से जाओगे या नहीं? जोजो, हमें गोली मारने की धमकी ना दो, गोली उस रब्बी को लगेगी, हमें बचना आता है। जोजो ने रिवॉल्वर की नाल को अपनी कनपट्टी से लगाकर कहा, अब कैसे बचोगे और मुझे कैसे बचाओगे? एक कदम भी आगे बढ़ोगे तो ट्रिगर दबा दूंगी। अली और सानी पर सख्ता सा छा गया। उसके तेवर बता रहे थे कि वो किसी भी लम्हे में ट्रिगर दबा देगी। अली ने कहा, मैं वादा करता हूँ अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा, मगर जो तुम्हें खुदा का वास्ता है, रिवॉल्वर हटा लो। तुम दोनों वापस जाओगे तो इसे हटा लूंगी। सानी ने कहा, मैं अल्पा से कहती हूँ वो अपनी बड़ी से बड़ी शर्त मनवा ले, हम अपनी जोजो की रिहाई के लिए। जोजो ने चीख कर कहा, बकवास मत करो, मैं किसी अल्पा को नहीं जानती हूँ। मैं 10 तक गिनती शुरू करती हूँ। अगर 10 कहने तक तुम दोनों इस तहखाने से और सिनागॉग से बाहर ना गए तो 11 नहीं कहूँगी, ट्रिगर दबा दूंगी। लो, शुरू करती हूँ, यहाँ से जाओ या फिर मुझे मरता हुआ देखो। 1। सानी और अली ने एक दूसरे को देखा। दोनों की नज़रों में एक ही सवाल था, उसे हलाकत से कैसे बचाया जाए। अल्पा ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा रखा था। हम में से कोई उसे अपने काबू में नहीं ला सकता था। वो बोली, जाओ, चले जाओ। 2। अगर मुझे वहाँ बुलाया जाता और मैं समझाता तब भी वो खुदकशी से बाज ना आती, क्योंकि वो अपने इख्तियार में नहीं थी। उसने कहा, फरहाद अली तैमूर और उसकी पूरी फैमिली की जहानतों को आजमा लो, मैं फिर भी बाज नहीं आऊँगी। मेरी ज़िंदगी की एक ही सूरत है, जाओ, चले जाओ। 3। पारस भी वहाँ आ जाता तो बचपन से अब तक की मोहब्बतों का वास्ता देकर भी उसे उसके इरादे से बाज नहीं रख सकता था। वो गुर्रा कर बोली, 4। जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी और आमना फरहाद की रूहानी टेलीपैथी जोजो को नई जिंदगी दे सकती थी। वो रूहानी कुव्वतों से अल्पा को उसके दिमाग से भागने पर मजबूर कर सकते थे। उसने कहा, आधी गिनती हो चुकी है, 5। सानी ने जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी को मुखातिब किया। उन्होंने सांस रोक ली। उसने वापस आकर जोजो की उंगली को ट्रिगर पर देखा। वो बोली, 6। उसने फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। रूहानी टेलीपैथी की मदद हासिल करने के लिए आमना फरहाद के पास आई। आमना ने भी सांस रोक ली। ये कैसा भेद था? क्यों रूहानी मदद हासिल नहीं हो रही थी? जोजो ने कहा,
मैं जाने वाली हूँ साथ। सानी ने फिर एक बार जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी के पास जाकर कहा, हुजूर मदद मदद। उन्होंने फरमाया, अपनी मदद आप, जहानत, जहानत और सिर्फ जहानत। उन्होंने सांस रोक ली। जोजो ने कहा, 8। जनाब तबरेज़ी साहब ने सिर्फ इशारा दिया था और सानी का जहन रोशन हो गया था। क़ारीन कराम, जनाब तबरेज़ी साहब ने सिर्फ सानी को नहीं, आपको भी जहानत का इशारा दिया है। मेरी दास्तान इब्तदा से अब तक जहानत की बाजियों से भरी पड़ी है। सानी सिर्फ 1 सेकंड में जोजो को बचाएगी, किसी बेतुके अंदाज से नहीं, जहानत से बचाएगी, मगर कैसे? डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।